What are these? No, no, I'm not shooting you. I am to. Okay. This is the best view I've seen. वहाँ पे काफ़ी ये जो हाथ वाला पाम वाला लास्ट टाइम व्हाट यू डिड ना माय सोल लेफ्ट फ्रॉम माय बॉडी She's bad. कुछ दिन पहले मैं अपने एक नागा फ्रेंड से बात कर रहा था कि यार आई हैव ट्रैवल्ड क्वाइट अ लॉट इन नागालैंड बट यहाँ रिवर्स ज़्यादा देखने को नहीं मिली शी सेड देयर इज़ ए फेमस दोयांग रिवर जो वोखा डिस्ट्रिक्ट के पास है जहाँ बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं एंड इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम कोहिमा वोखा दिस डायरेक्शन वोखा वोखा थैंक यू डिस्टेंस फ्रॉम कोहिमा टू वोखा इज़ ओनली 76 किलोमीटर सो आज मैं जा रहा हूँ नागालैंड की लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर को देखने Oranges? 100 rupees? Okay. Okay, I'll have oranges. नागालैंड में ट्रैवल करते हुए जहाँ भी मुझे ऐसे रोड साइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेलर दिखते हैं तो आई मेक श्योर टू बाई सम फ्रूट्स फ्रॉम देम बिकॉज दे आर वेरी फ्रेश ऑर्गेनिक एंड जूसी What are these? No, no, I'm not shooting you. I am to. Itu. Yeah. Mita alu kipa. Boleh je biar sih. Sweet potato. Okay. And that is guava. Itu. हाँ. Squash. Squash. Okay. And these are yam. Ya. Yam, है ना? Yeah. And that is these. These. Itu. Yeah. Banana. Banana flower. Okay. And what are these? Yencek. Yenchek. रास्ते में एक जगह कुछ ऐसा नज़ारा था सो आई स्टॉप देयर एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल व्यू मुझे लिटिल मोर देन 2 आवर्स लगे कोहिमा से वोखा पहुंचने में बट जर्नी वॉज एक्चुअली नॉट स्मूथ बिकॉज रोड कंडीशन वॉज बैड Doyang River. हाँ, इस साइड. सीधा Yeah. ओके कितना किलोमीटर है 30 किलोमीटर 25 to 30. ओके थैंक यू Yeah, great. या From पंजाब Punjab. या Take a lot. ओके थैंक यू A lot. या वोखा पहुंच के पता चला कि तोयांग इज स्टिल 25-30 किलोमीटर्स अवे वोखा से आगे भी मुझे अराउंड 1 आवर लग गया दोयांग डैम तक पहुंचने में Alone. या सोलो ट्रैवलिंग आई केम फ्रॉम कोहिमा If you want to go boat ride, boating. बोटिंग Yeah. We'll go. You can see the house now. हाँ हाँ The up one will Uh-huh. round around here like this. ओके 1,000 only. So this is Doyang River, which is the largest and longest river of Nagaland. This river originates from Zafu Hill near the southern slope of Mao in Manipur and flows through Nagaland before finally joining the Brahmaputra River in Assam. Is this river deep? Like how Yeah. deep? More than 300 feet. 300 feet. Okay. Yeah. Lama tu lah jadi lah. Hello. Very beautiful. Yeah. So all
all surrounded by mountains, है ना? Yeah, yeah. Hi. Say hi. He's feeling shy, yeah. Hey. In Nagaland, that is the longest one. Longest bridge. Yeah, yeah. This is the largest river also, na? In Nagaland, largest river. Okay. This is the best view I've seen in Nagaland so far. Okay. It looks very deep also, na? Yeah. Are there fish also? Yeah, yeah. Hello. Hello, guys. What's your name? Something. Okay, nice to meet you. My name is Parveez. Okay, nice to meet you. Very beautiful. This is the net. Which we catch fish. हाँ. Yeah. Okay. This is the net. This is the best view I have seen so far in Nagaland. Yeah. Very beautiful. Bridge in Nagaland. Oh, that one. Yeah, we call It looks short from here, but Yeah, but if you go that side, you'll see the full. Okay. It's very long. What's the name of your resort? You can name. Enmuli. Enmuli. Yeah. Okay. Nice. Enmuli. It's in Doyang. Yeah. The place name is also Doyang. Yeah, Doyang. Doyang and Doyang River. Hello, guys. Please like and subscribe. Okay. Nice to meet you, bro. Hello. Bye. Bye. What's his name? Konsumo. What is your name? Hello. We should leave now. Okay. Safe journey, by the way. Okay. Bye. Nice to meet you. Okay, same. Wait. Nice to meet you. Okay. तो दोयांग से मैं 4 बजे के राउंड निकल जाता हूँ और 5 बजे तक वोखा पहुँच गया था। वोखा पहुँचने के बाद मैं थोड़ा डबल माइंडेड था कि यार मैं यहीं पे स्टे करूँ या फिर कोहिमा वापस जाऊँ। देन आई थॉट कि यार 2 ही घंटे की जर्नी है एंड कोहिमा इज़ नियर बाय, तो ट्रैफिक अच्छा खासा होगा तो विजिबिलिटी की इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस जोने बोटो के टाइम पे भी हमने ड्राइव किया था तो उसका भी एक कॉन्फिडेंस था, बट उस केस में ना रोड कंडीशन वॉज क्वाइट डिसेंट। बट कोहिमा और वोखा वाले रूट पे रोड कंडीशन बहुत ही पुअर थी, बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। एंड लेट मी टेल यू, नागालैंड में ना अंधेरा बहुत ही जल्दी हो जाता है। 4 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है, 5 साढ़े 5 बजे तक पूरा डार्क हो जाता है और यहाँ के जंगल्स बहुत ही डेंस है, रात को कुछ पता ही नहीं चलता। मैं स्कूटी में था, स्कूटी वैसे ही वो झटके पड़ते थे तो वो उसको झेलना मुश्किल होता है और लाइट उसकी वैसे ही बहुत कम होती है। बट मैं निकल जाता हूँ, मैंने कहा आराम आराम से जाएंगे, पहुँच जाएंगे। अभी निकला ही था वोखा से तो एक जगह पे लैंडस्लाइड हो रहा था, इतने बड़े बड़े पत्थर थे। तो एक बंदा था वो वहीं पे खड़ा हुआ था, वो बेसिकली गाइड कर रहा था। जब वो सिग्नल करता था तो सारे मूव करते थे और जब वो कहता था तो सारे रुक जाते थे। तो पहले ही थोड़ा सा डर लगना शुरू हो गया था, बट समहाउ मैं ड्राइव करता रहा। बेसिकली हो क्या रहा था, विजिबिलिटी इतनी ख़राब थी कि जब भी कोई गड्ढा आता था ना, जब वो 1-2 मीटर रह जाता था ना तभी दिखता था। विजिबिलिटी वॉज सो पुअर और ऊपर से मैं स्कूटी में था और झटका लगता था, स्कूटी वैसे ही शॉक नहीं ले पाती। तो जब 50 किलोमीटर्स रह गए थे, एक स्मूथ पैच ऑफ रोड आया, मैंने थोड़ा सा एक्सेलरेट किया, 35-40 की स्पीड रही होगी। उसके बाद सडनली एक बहुत ही डीप गड्ढा आया, उसके बाद पूरा रफ पैच ऑफ रोड था, रॉक्स ही रॉक्स थे। जब भी वो बिल्कुल पास में आया तब मुझे एकदम से पता चला और मैंने ब्रेक लगाई और इतना जोर का झटका लगा, बिफोर आई कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग मैं ज़मीन पे था। मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। सबसे पहला थॉट तो माइंड में मम्मी पापा का आया, पर उस समय मुझे पता नहीं था कि मेरे कहाँ कहाँ चोट लगी है, तो मैं कुछ सेकंड वहीं पे पड़ा रहा। फिर मुझे थोड़ा फील होना शुरू हुआ मेरे हाथों पे, एल्बो पे, तो फिर मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, चेक किया कि मेरे सारे पुर्जे ठीक हैं और कहीं चोट नहीं लगी थी, सिर्फ पाम्स पे और एल्बो पे लगी थी। नाउ व्हेन आई रिकॉल, मैंने भी एक चीज़ इंस्टिंक्टिवली की थी कि जब मैं फॉल हो रहा था ना, मैंने सारा लोड अपने हाथों पे ले लिया था और एल्बो पे, ताकि मेरे और किसी बॉडी पार्ट पे चोट ना लगे। और एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि मैं ना राइट हैंड साइड को फॉल हुआ। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को फॉल होता ना तो मैं मिलता भी ना, क्योंकि बहुत ही गहरी खाई थी वहाँ पे और वो जगह ऐसी थी, एकदम डार्क जंगल, अंधेरा, कुछ पता नहीं चल रहा था और कोई ट्रैफिक भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान रोड थी।
तो वहाँ पे कोई हेल्प भी नहीं मिलने वाली थी। एंड ब्लड वॉज जस्ट गशिंग आउट फ्रॉम माई हैंड्स, और मेरी पूरी जीन्स कपड़े ब्लड से ऐसे पूरे स्टेन्ड हो गए थे। आई वॉज जस्ट होपिंग कि यार स्कूटी स्टार्ट हो जाए, मैं कोहिमा ले जाऊँगा किसी तरीके से। फॉर्चुनेटली स्कूटी स्टार्ट हो गई, और आई डोंट नो हाउ आई रीच कोहिमा मुझे भी नहीं पता, बस ले गया मैं किसी तरीके से। वहाँ पे काफ़ी ये जो हाथ वाला पाम वाला एरिया है, ये तो बहुत ही डीप एकदम टीयर हो गया था, एल्बो भी पूरी ब्रूज्ड हो गई थी। तो जो नर्सिस को फिर मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो भी थोड़े शॉक हो गए थे कि मैं ऐसी कंडीशन में कैसे ड्राइव करके आया तो बस उसके बाद फिर हर ऑल्टरनेट डेज पे ड्रेसिंग करवाने जाना होता था। Ma'am, last time what you did na, my soul left from my body. She's When you bad. put hydrogen peroxide. On est la fesse des cases. When you put hydrogen peroxide. Done. Thank you so much. It's almost like 13 days. It took 13 days. Huh? Thank you so much. I enjoyed coming here. Thank you. 2 हफ्ते लग गए हील होने में। अब 2 हफ्ते से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अब ऑलमोस्ट हील्ड, थोड़ा सा बचा है, बस थोड़ा सा बचा है। सॉरी फॉर डैट, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाया, बट अब से मैं ट्राई करूँगा कंसिस्टेंटली वीडियो बनाने की। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी।